तो जैसे कि दो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे आज। वन विल बी अवर रेगुलर क्लास जो हम लोग श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर से पढ़ रहे हैं, विष्णु की शिक्षाएं, आप प्रार्थनाएं बेसिकली। और नेक्स्ट वन विल बी अबाउट पुरुषोत्तम मास, क्योंकि परसों से पुरुषोत्तम मास भी शुरू होगा। तो समथिंग अबाउट दैट। पुरुषोत्तम मास के बारे में ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। आई विल शो यू फ्यू आर्टिकल्स और समथिंग फॉर अवर रेगुलर क्लास, ताकि हमारी रेगुलर क्लास ब्रेक ना करें। So you can screen see on your screen. So this is the prayer which we have to discuss today. और हमने लास्ट टाइम 34th वर्स तक किया था डिस्कशन। सो दिस इज द 35th वर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सपदि सखी वचन शम्य मध्ये निज परयोवलयो रथं निवेश्य स्थितत्वति पर सैनिकाय रक्षण कृतवती पार्थ सखे रतिर्मामस्तु ममास्तु। It says, in obedience to the command of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there, he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. Yes, pretty bro. So start. Papa. Bhagavad Gita, Arjuna ordered the infallible Lord Shri Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, "Here is Bhishma, here is Drona," and so on. The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever he may be. But out of his causeless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries out the order of the devotee like an awaiting servant. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased as as a father is pleased to carry out the order of his small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees. And Bhishma Dev was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. The Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. Actually, he was merciful to the opposite party because they could not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. Therefore, the Lord is all good, and whatever he does is for everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually it was for the good of Arjuna's enemies. Such are the transcendental activities of the Lord, and whoever understands this also gets salvation after quitting this material body. The Lord does not wrong in any circumstances because he is absolute all good at all times. So here what we see again, a constant quality भागवतम के अंदर भगवान की मेंशन की गई है, तो उनकी भक्त वत्सलता कि हाउ मच ही लव्स हिज डिवोटीज, और ये कॉन्स्टेंट ही है, आएगी ही आएगी भगवान के गुणों में। कभी भी आप बात करोगे ना, वत्सलता, तो वत्स का मतलब क्या होता है? जैसे गाय का बछड़ा होता है, तो गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं। और गाय अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, कभी आप देखोगे नेचुरली। तो गाय का अगर बच्चा मतलब शरीर छोड़ भी दे, तो भी उसकी बॉडी को वो चाटती रहेगी। सो मच शी लव्स। तो वो एक वत्स बोलते हैं उसको ना, वत्स। वत्स शब्द का अर्थ ही होता है कि जो बच्चा है गाय का। तो इसीलिए भगवान के लिए ये वर्ड यूज किया गया, भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों से बहुत असीम प्रेम करते हैं। तो उन प्रेम को भगवान पूरे भागवतम के अंदर अलग अलग रूपों में दिखाते हैं एक्चुअली में। भागवतम में जितनी भी स्टोरी लाइन आप देखिएगा, उसके अंदर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग स्टोरीज में कृष्णा ये दिखाते हैं
कि कितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, हाउ मच आई लव। इस वर्ष के अंदर भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि भीष्म देव कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सपदि सखी वचो विषम मध्य। सखी वचो कमांड ऑफ द फ्रेंड। ये अपने फ्रेंड के कहने पे, है ना, अर्जुन के कहने मात्र से भगवान ने क्या किया, हाँ, निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश। उसको क्या किया उन्होंने, बीचों बीच रथ को हाँकते हुए ले जाते हुए उन्होंने खड़ा कर दिया दोनों ही सेनाओं के बीच में। तो ही वॉज एन ऑर्डर कैरियर, कृष्ण इज एन ऑर्डर कैरियर। भक्त जो बोलते हैं ना भगवान से जो करते हैं, ये सही में भगवान की एक असीम शक्ति है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हुए हैं। इसलिए भाव भक्ति के अंदर एक लक्षण आता है, उसको कहते हैं सुदुर्लभा। भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, राइट, 6 सिम्टम। पहला होता है जब हम साधना भक्ति करते हैं तो 2 लक्षण प्रकट होते हैं। एक को कहते हैं क्लेशग्नि, दूसरे को कहते हैं शुभदा। क्लेशग्नि का मतलब होता है कि जो भी हमारी क्लेश कॉज करता है लाइफ में ना, दुखों को कॉज कर रहा है, डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है लाइफ में, उसके दुश्मन है क्या, भक्ति। भक्ति उसको खत्म करती है। तो वहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्री रूप गोस्वामी बहुत अच्छा एनालिसिस करते हुए बताते हैं कि क्लेशों की अगर नेचुरल दुश्मन कोई हो सकती है तो भक्ति ही हो सकती है। और क्लेश होते क्यों है जीवन में, कभी भी दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में, तो ओनली रीजन इज द सिंस, बिकॉज ऑफ द पास्ट सिंस। पुराने पापों से क्या होता है, ये हमारे अंदर ये आते हैं, दुख आते हैं जीवन के अंदर। इस बात को नोट करिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम माह की जब ग्लोरीज हम डिस्कस करेंगे तो इसको हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो क्लेशग्नि, दूसरा शुभदा। शुभदा इज ऑल ऑस्पिशियसनेस, ये हर प्रकार की शुभता क्रिएट करता है। और शुभता की डेफिनेशन बाहर की दुनिया में कई बार सेंस ग्रेटिफिकेशन से किया जाता है। तो जो इंद्र तृप्ति है, अगर अच्छे से इंद्र तृप्ति की वस्तुएं मिलती हैं तो मानते हैं कि जीवन में शुभ शुभ हो रहा है। और अगर जीवन में हमें इंद्र तृप्ति की वस्तुएं ना मिले, हमें लगेगा कि शुभ नहीं हो रहा हमारे साथ, अशुभ हो रहा है। दैट्स द सेकंड थिंग। नाउ ये तो प्रकट हो जाती है जब हम साधना भक्ति ही करते हैं तभी, दैट स्टेज ओनली। लेकिन जब व्यक्ति एक स्टेज आगे जाता है, दैट इज द स्टेज ऑफ भाव। भाव के अंदर 2 गुण और मैनिफेस्ट करते हैं। एक होता है मोक्ष लघुताकृत, और फोर्थ वन इज सुदुर्लभ। मोक्ष लघुताकृत क्या होता है कि व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी बहुत तुच्छ लगती है, तो लगता है ये मुक्ति बहुत ही बेकार चीज है, इट इज ऑफ नो यूज। वो मुक्ति को बहुत तुच्छ मानते हैं। दैट इज द थर्ड स्टेज। एंड द फोर्थ स्टेज इज सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब नॉर्मली भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हाथ, मतलब किसी के हाथ में देना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान की इंडिपेंडेंस भी कोई और कंट्रोल करेगा। ये पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि कृष्णा डजंट वांट्स टू गिव हिज ओन फ्री विल, फ्री इंडिपेंडेंस इन द हैंड्स ऑफ समबडी। व्हाई समबडी? बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, तो भगवान अपनी डिपेंडेंस नहीं देना चाहते किसी के हाथ में। इसीलिए इसको नाम दिया गया सुदुर्लभ, क्योंकि ये आसानी से व्यक्ति को नहीं, मतलब मिलती है, भक्ति नहीं मिलती, भाव भक्ति आसानी से नहीं मिलेगी। और दो जो होती है प्रेमा भक्ति प्रकट होती है, दैट इज संदरानंद विशेष आत्मा। इसका मतलब होता है कि अ वेरी कंडेंस्ड ब्लिस, एक विशेष प्रकार का आनंद है, तो कि भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही एक विशेष प्रकार का आनंद होता है, संदरानंद विशेष आता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज Shri Krishna Akarshani. Shri Krishna becomes very very attracted towards the devotees. ये भगवान का आखिरी गुण है, जो कि भक्ति का आखिरी गुण है, जो पीछे बताया गया। ना, मैंने भाव की स्थिति बताई। अर्जुन जो थे, जस्ट ऑन द लेवल ऑफ भाव, दैट इज द पॉइंट, ही इज एबल टू कंट्रोल कृष्णा। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जस्ट ऑन द कमांड। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भगवान को कमांड करे, इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान को आप स्तुति कर सकते हो, उनकी प्रेयर्स कर सकते हो, उनके आगे निवेदन रख सकते हो, लेकिन कमांड नहीं कर सकते। कमांड जो है एक्चुअली ओनली 1 पर्सन कैन डू, हु हैज दैट कंट्रोल ओवर कृष्णा। और ये कंट्रोल अर्जुन का था भगवान के ऊपर, इसलिए उनको बोला कि आप रथ को लेकर के बीचों बीच में चलो। वहां पे क्यों चलो? क्योंकि वहां पे चल करके मैं दोनों ही पक्ष के जो योद्धा हैं उनके स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ।
निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, है ना, आई वांट टू सी द स्ट्रेंथ। फिर क्या होता है, स्थितवती पर सैन्य काय अक्षराम। भगवान का देखना भी कैसा था कि कृष्णा सीज। हम कई बार देखते हैं कि कृष्णा की ग्लांस मर्सीफुल ग्लांस होती है, क्योंकि इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। भगवान की इस बार जो दृष्टिपात है ना ऑपोजिट पार्टी के ऊपर, पर सैनिक, दूसरे सैनिकों के ऊपर, तो कैसी है, आयु क्षण हितवती, मतलब कि उनकी जो आयु है कृष्ण के देखने मात्र से वो कम हो गई, जस्ट बाई सीइंग। सोचो, किसी के देखने मात्र से किसी की आयु कम हो जा रही है, तो भगवान का वो है ग्लांस, वो बहुत ऑस्पिशियस माना गया है, क्योंकि उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई, दे बिकेम लिबरेटेड, दे वर नॉट लाइक ऑर्डिनरी डेथ, नॉर्मल मृत्यु नहीं थी उनकी, दिस वाज समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल। जैसे डिजायर करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी मृत्यु हर किसी को प्राप्त हो, और ये स्पेशली उनको प्राप्त थी जो कि ऑपोजिट पार्टी में भी बैठे हुए थे सारे के सारे योद्धा युद्ध करने के लिए। सो द पॉइंट वन ट्राइंग टू मेक इज कि हियर ओनली वन थिंग इज देयर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कृष्ण which is submissive to his devotees. That's what is being prominently highlighted in this verse. ठीक है, so I will just take this much only for today, मैं इसको elaborate नहीं करूंगा। I am also feeling it echoing from my own iPad, there is no solution for it। चलो, अभी ठीक है, I cannot stop it, I think कैसे इसको बंद करेंगे। ओके, so हरे कृष्ण, आई थिंक सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, now it's better। इसीलिए बेटर है। So what I'm trying to say is कि voice can be understood। So now today I will be only discussing about the Purushottam Mass, Adhik Mass, which is going to start from day after tomorrow, Sunday। I will show you something before that। So this is what I took out। This is a book called Bhagavad Cosmology, और मैंने यहाँ से कुछ पैराग्राफ्स निकाले थे। हाँ, पूछो संदेह। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। यस। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने जब नेक्टर ऑफ डिवोशन स्टार्ट किया था, तो उसमें आपने बताया था कि जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध जो गुण है भक्ति का, वो भगवान सबको नहीं देते। और आप हमने उसमें डिस्कस किया था कि पांडवों को भी वो, इंक्लूडिंग अर्जुन, वो नहीं, शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में शायद नहीं, जो मुझे याद आ रहा है। आई थिंक ऐसा ही था उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें, तो नहीं वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। नहीं नहीं, पांडवों को शुद्ध भक्ति प्राप्त है, वो शुद्ध भक्ति ऐश्वर्यमयी है, ऐश्वर्यमयी। ऐश्वर्यमयी का मतलब होता है कि ऑपुलेंस से भरी है भगवान के, माधुर्य का भाव नहीं है। माधुर्य का भाव वृंदावन वासियों के पास है खाली, तो वहां पे सेपरेशन है थोड़ा सा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ओके। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट शेयर किया आपसे। दिस इज रिगार्डिंग द अधिक मास। ये कैलकुलेशन पहले आपको बताते हैं ये पुरुषोत्तम मास आता कैसे, एंड देन लेटर ऑन आई विल टेल यू कि हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इन दैट। तो व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ अधिक मासेस। तो फर्स्ट लाइन आई एम रीडिंग, अधिक मास extra month, it is written when the sun does not at all transit into any rashi but simply keeps moving within a rashi in a lunar month, that is before a new moon, then that lunar month will be named according to the first upcoming transit. It is also take the epithet of adhika or the extra. For example,
a lunar month elapsed without a solar transit, and the next transit is into Mesh. Then this month without the transit is labeled Adhik Chaitra Mas. The next month will be labeled according to the transit as usual. You get that effect. Niche or Shuddha. That is called Shuddha Chaitra Mas. Now, extra month or Adhik Mas. Mas क्या होता है? Lunar month. Falls every 32.5 months. So almost like a 3 years का period है जिसके बाद ये आता है. It is also known as Purushottam Mas. So as to give it a devotional name. Thus 12 lunar months is equal to approximately 355 to 356 days. While in a solar year, there are 365 or 366 days, which creates a difference of 9 to 11 days, which is offset every third year by adding one extra month of 30 days. No अधिक मास falls during कार्तिक to माघ. ये 4 महीने में तो अधिक मास नहीं आता है. The list of extra months appeared in the last few decades. तो कब कब कैसे कैसे आया हुआ है ये आपके सामने मेंशन किया गया है, राइट? I don't know why it is echoing, but just take that. Hare Krishna. Still discovering that. There are some limitations on the iPad actually. Just a minute. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm trying my best, but actually कुछ साथ दिक्कत आ रही है iPad में. Can you cope up आप cope up कर सकते हो इसमें? Is it possible? Anybody can respond. Yes, Prabhuji. ठीक है. So next time I will do कि कोई और डॉक्यूमेंट शेयर करे तो ज़्यादा अच्छा होगा. Because both things are in front of me. तो एक से आवाज आ रही है इसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. ओके, मैं आपको फर्दर बताता हूँ क्या है. सो व्हाट इज द ओवरऑल कंसेप्ट इज कि लूनर मंथ जो आपका चलता है दैट गोज अराउंड 354 to 55 डेज, और जो सोलर मंथ होता है दैट गोज लाइक 365 डेज, 65 पॉइंट समथिंग आता है. तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप होली फेस्टिवल ले लो. इस बार होली पड़ी थी 4 मार्च, राइट, 4 मार्च. अब नेक्स्ट ईयर आप देखना जब पुरुषोत्तम अधिक मास लग जाएगा इस बार, अगली बार जब होली पड़ेगी ना दैट विल बी लाइक एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च. तो उसके अगले साल देखोगे 8-10 दिन पीछे आ जाएगा, फिर देखोगे फिर 8-10 दिन पीछे आ जाएगी. तो इसे क्यों आती है, वाई इट इज सो? क्योंकि जो चंद्रमा है वो पूरी 12 राशियों को कवर करता है समथिंग अराउंड 55 डेज के अंदर, और जो सूर्य कवर करता है दैट कवर्स इट अराउंड 6 डेज. इनकी स्पीड का वेरिएशन होता है. देयर इज वेरिएशन ऑफ स्पीड इन विच द सन ट्रेवल्स एंड द मून ट्रेवल्स. तो बात को ध्यान से समझिएगा.
सो व्हेन दे ट्रैवल इन सच ए वे, तो इनके क्योंकि जितने फेस्टिवल्स आएंगे ना वो लूनर मंथ के हिसाब से आएंगे, दे डोंट कम इन द सोलर मंथ। तो सोलर और लूनर दोनों कैलेंडर्स को प्रॉपरली कैलिब्रेट कर सकें ताकि दोनों सिंक्रोनस होकर के काम कर सकें, इसके लिए ये पुरुषोत्तम अधिक मास ऐड किया जाता है। अब समस्या क्या है इस पुरुषोत्तम अधिक मास के साथ, कि इसमें कोई भी लूनर मंथ का कोई भी फेस्टिवल नहीं आएगा। 12 मास में कोई भी एक मास नहीं है वो। इसीलिए इस पीरियड में कोई भी फेस्टिवल आप नहीं देखोगे, कोई भी इवेंट नहीं देखोगे आप। खाली 2 एकादशियां देखोगे आप, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखोगे इस मंथ के अंदर। ये बात को नोट कर लेना। इसलिए इसको कर्म कांड के अंदर मल मास भी बोला गया है। मल मास, मल का मतलब समझते हो, मल इज द स्टूल। क्यों मल मास बोलते हैं? क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी एक वर्णाश्रम संबंधित क्रिया करते हो, कार्य करते हो, संस्कार करते हो, शादी करते हो, नया घर लेते हो, नई प्रॉपर्टी लेते हो, या कुछ भी, वॉट एवर यू डू, तो अगर उससे आप कुछ फ्रूट्स एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे कुछ फल मिले उसमें से, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा उसमें। क्यों नहीं मिलेगा उसमें? द ओनली रीजन बीइंग क्योंकि वो आपको फ्रूट्स नहीं देगा उस महीने में। उसके लिए इसको नो फ्रूट मंथ कह सकते हो। देयर इज नो फ्रूट्स इन दिस। इस मंथ के अंदर कोई भी फ्रूट्स नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए नॉर्मली इस महीनों में कहीं भी आपको शादी नहीं मिलेगी, कहीं पे आपको नई प्रॉपर्टी लोग नहीं खरीदते हैं, कोई नई सामान नहीं खरीद में लेके आते हैं, या कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। तो जब ऐसा महीना ये बन गया ना, तो पुराणों में कथा आती है कि अपने आप को बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहा था। बिकॉज मंथ इज ऑल्सो लाइक अ पर्सन, ये भी एक व्यक्ति होते हैं। तो अपने को बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे थे कि अरे मैं कैसा महीना हो गया हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं करेगा क्योंकि मैं कुछ दे नहीं सकता ना इस महीने में। जब लाइफ में वैल्यू तब तक है आपकी जब तक आप कुछ दोगे लोगों को। अब लोगों को देना बंद कर दोगे, लोग आपकी वैल्यू बंद कर देंगे। तो मंथ को भी यही लगा, मलमास को भी यही लगा कि भाई मैं कुछ इस महीने में दे नहीं रहा हूँ, देयर इज नथिंग आई एम गिविंग। तो लोग मेरी पूजा भी नहीं करेंगे, वर्शिप भी नहीं करेंगे, आई एम रिजेक्टेड पर्सन, मैं रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से। तब जाकर के भगवान ने उनको स्वीकार किया, पुरुषोत्तम भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। बोला कोई बात नहीं, जिसको कोई नहीं चूज करता ना उसको मैं चूज करता हूँ। इसलिए हम कहते हैं ना, भगवान हमेशा हरे का सहारा होते हैं। जिसका कि कोई नहीं दुनिया में ना, उसका भगवान जरूर है फॉर श्योर। क्योंकि भगवान से संबंध नहीं खत्म होता हमारा, भगवान से संबंध हमेशा एज इट इज रहेगा। लेकिन भगवान ने जब इसको स्वीकार किया, तो फिर एक कंडीशन रखी है कि अगर इस महीने में कोई कुछ कर्म कांड या कुछ करोगे भी नहीं, तो वैसे ये मास कुछ देगा नहीं आपको। लेकिन करोगे भी, हम बहुत प्रयास भी करोगे, कुछ मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान ने एक वरदान भी रखा है इस महीने के अंदर। वो वरदान क्या रखा है? इस महीने में अगर आप कुछ डिवोशनल एक्ट करते हो, कुछ भी भक्ति संबंधित कार्य करते हो ना, तो उसका बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा, बहुत लाभ पहुंचेगा। इसको लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग बातें मेंशन कर रखी हैं। तो फ्री ऑफ देम आई विल शो यू, जो मेरे को एक आर्टिकल मिला, तो देयर इट इज। सो पुरुषोत्तम, you can see on your screen, is believed to be the most favorable for spiritual upliftment। एक्चुअली कार्तिक से ही बेटर माना गया है इसको। ओनली रीजन भी कार्तिक से बेटर क्यों माना गया है कि कार्तिक तो हर साल आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 महीने में 3 साल में आता है, एक बार आएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मलमास by the performance of karma kanda, because they cannot get any material fruitive results from their worship during the month. So our acharya elucidate that it is called malmas because devotional activities performed in this month destroy the dirt and contamination caused by sins। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर आप कोई भी भक्ति का कार्य करते हो ना, वैसे तो भक्ति के जितने कार्य हैं हमारे पापों को खत्म करते ही करते हैं, लेकिन अगर इस मास में करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आपके जितने भी पाप करने की आप सोच भी रहोगे ना, वो सारे के सारे पाप एक झटके में फिनिश ऑफ हो सकते हैं। इफ यू जस्ट टेक द शेल्टर ऑफ दिस पुरुषोत्तम मंथ। ये पुरुषोत्तम मंथ की सही में बहुत बड़ी महिमा है। पर नुकसान और एक ही चीज क्या होती है, क्योंकि लोग बार बार पाप करते रहते हैं, इसलिए कई बार
भक्ति से हमें फिर रिजल्ट नहीं निकलता है, हमें लगता है कि रिजल्ट क्यों निकल गया रहा भक्ति में। हमें उस पाप करने की प्रोपेंसिटी पे बहुत वर्क करना पड़ता है। अगर एज अ डिवोटी, एज अ साधका आप पूछोगे ना कि हमारी क्या एक वो होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, या हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए इस पुरुषोत्तम मास को लेकर के, तो माइंडसेट ये होना चाहिए हम सबको लेकर के कि इस महीने में हम भक्ति इस प्रकार से करें ना, तो जो भी पाप करने की प्रवृत्तियां हैं भगवान उसको शांत करें, उसको खत्म करें। ताकि पाप करने की जो प्रवृत्ति खत्म होगी ना, फिर तो पुरुषोत्तम मास चला भी जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी आ जाएगा ना, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। हर मंथ बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि वो प्रोपेंसिटी खत्म हो गई। और प्रोपेंसिटी खत्म होना जरूरी है, क्योंकि पाप तो चलो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है। लोग उसी चीज को बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। और इंडिया में आप देखते रहोगे कि भारत में नाना प्रकार के पुण्य क्रियाएं होती हैं। लोग पुण्य करते हैं, फिर पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर पाप करते हैं। तो बड़ी एंडलेस साइकिल है ये, एंडलेस साइकिल है, खत्म नहीं होती है। तो इसको खत्म करना है ना, तो जस्ट टेक दिस स्पिरिट दैट वी हैव टू फिनिश ऑफ। क्या फिनिश ऑफ करना है? द प्रोपेंसिटी टू कमिट द सिंस, पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म करना। इफ वी कैन वर्क ऑन दैट, देन दिस मंथ इज टोटली ब्लेस्ड। तो पूरी तरह से हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है पुरुषोत्तम मास के ऊपर। तो पुरुषोत्तम मास में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप देखोगे पद्म पुराण और स्कंद पुराण से कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम मास हैज ऑल द पावर, आई हैव टू ब्लेस इट्स ऑब्जर्वर। सो वन हू फॉलोज द पुरुषोत्तम व्रत विल डिस्ट्रॉय ऑल हिज पास्ट सिंफुल रिएक्शन। तो आप पूछो कि पुरुषोत्तम व्रत क्या है, क्या करें इस पुरुषोत्तम व्रत के अंदर। एकादशी व्रत तो समझ में आता है, अन्न नहीं खाना है और श्रवण कीर्तन करना है। तो पुरुषोत्तम मास में क्या करें? देखिए पुरुषोत्तम मास में हमें कुछ अलग नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है खाली। जितनी आप करते हो ना, उससे ज्यादा करना है कि नहीं। मान लो आपके प्लेट में खाने के बाद एक गुलाब जामुन आपको मिल जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि वाह क्या बात है, एक गुलाब जामुन मिल गया। लेकिन मान लो एक्स्ट्रा कृपा हो गई, आपके प्लेट में दो गुलाब जामुन आ गया, कैसा लगेगा आपको? लगेगा सही में जो आज देने वाला है सर्वर बहुत ही अच्छा सर्वर है, उसने मुझ पर स्पेशल कृपा की है। सेम चीज भगवान को लगती है कि अगर कोई भक्त ऑलरेडी भक्ति कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं हम सब भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान को एक्स्ट्रा गुलाब जामुन सर्व कर दोगे इस महीने में, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा, क्या बात है, इसने एक्स्ट्रा सर्व कर दिया आज मेरे को। तो एक्स्ट्रा सर्विंग किसकी करनी है? कुछ वाव लो आप, एक मंथ में आपको कुछ वाव लेना चाहिए। कैसे कैसे ले सकते हो, कुछ सजेशन बता देता हूँ आपको। शुरू से बताता हूँ, सुबह के दिन से बताता हूँ। अगर आप जल्दी उठते हो, मान लो आप अच्छा टाइम डिसाइड करते हो 4, 4:30, 5 o'clock, और व्रत लेने का मतलब है पूरे महीने का व्रत होता है। ऐसे नहीं कि आप एक दिन उठे, 2 दिन उठे, फिर कोई नहीं, हो जाते पे ठीक नहीं थी। आप ऐसे कुछ व्रत लो जो आप ले सकते हो। तो राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट स्टेप ये ले सकते हो आप। वैसे कार्तिक में तो ठंडे पानी से नहाने में भी बहुत पुण्य बताए गए हैं इसके। अब तो ऐसा कोई ठंडे पानी से नहाने का महत्व तो मैंने तो नहीं पढ़ा, क्योंकि गर्मी का सीजन ही है, तो लोग बोलेंगे ठंडे पानी से नहा भी लिया तो इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस और तपस्या। बट नॉनदलेस आप सुबह उठ के नहाइए, अच्छा रहेगा। फिर मंगल आरती करिए। आप दीप दिखा सकते हैं भगवान को, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच कैन बी डन। आप घर पे भगवान को दीप दिखा सकते हैं, हम सब दिखाते ही होंगे फॉर श्योर। तो डेली आप एक वॉव ले सकते हैं, क्या विश हो, मॉर्निंग में दिखा सकते हैं, शाम को दिखा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, चैंटिंग में ना इंक्रीज, कुछ इंक्रीज करिए। इफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड, एटलीस्ट चैंट 20 राउंड्स इफ यू हैव टाइम। और अगर और समय है तो चैंट 25 राउंड्स, एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नाम जप करने से नाम अपराध नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर आप 16 के बाद 17वीं माला भी कर लेंगे, भगवान आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, बल्कि बहुत खुश होंगे कि आपने एक एक्स्ट्रा राउंड चैंट किए आपने, या 2 राउंड चैंट किए आपने, या 3 राउंड चैंट किए। बट आपको पूरे महीने करना है, तो इसीलिए अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं कि मान लीजिए बुक्स नहीं पढ़ते प्रभात की, तो आप वाव लीजिए कि मैं 30 मिनट जरूर पढ़ूंगा रोज, या मैं 45 मिनट्स पढ़ूंगा, या पढ़ूंगी, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, तो टेक इट इन बोथ वे। पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या 1 आवर्स, लेट्स सपोज मैं 1 घंटे बुक पढ़ूंगा या पढ़ूंगा। देन हियरिंग में आप कुछ ऐड कर सकते हो, या कुछ वर्सेस मेमोराइज कर सकते हो आप। आपको सोच सकते हो कि ये वर्सेस मैं याद करूंगा, ये कृष्णा के लिए ऑफरिंग होगी,
मैं जैसे जगन्नाथ अष्टकम याद कर सकता हूँ, चौरागढ़ अष्टकम याद कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता याद कर सकते हैं। आई मीन वॉट एवर यू फील, जो आपको अच्छा लगे। इसमें कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ पुरुषोत्तम में। इस मंत्र इतना दयालु है कि आप जो कुछ भी भगवान को ऑफर करोगे ना, ही विल लविंगली एक्सेप्ट दैट, राइट, ही विल लविंगली एक्सेप्ट दैट। भगवान बहुत लविंगली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर श्योर। इसके अलावा हम लोग कुछ सेक्शन उठा सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे इस महीने में एक सेक्शन भगवत गीता का काफी एम्फसाइज किया जाता है, दैट इज द 15 चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। 15 चैप्टर, वो चैप्टर का टाइटल ही है पुरुषोत्तम योग, है ना। तो पुरुषोत्तम योग, अब ये चैप्टर कैसा चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट समरी गीता की मिल जाएगी आपको, इन वेरी नटशेल। वैसे तो सेकंड चैप्टर को भी बोलते हैं समरी है, बट 15 चैप्टर बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँ तो कंसेप्चुअल समरी है पूरे के पूरे भगवत गीता के एग्जैक्टली। मैं जो बचा हुआ टाइम था, मैं सोच रहा था थोड़ा सा आपको भगवत गीता के बारे में बताऊंगा। एंड दिस आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, दिस इज इजीली अवेलेबल ऑन स्कॉन डिजाइटरी ऑल्सो। आप उसको पढ़ सकते हो, यू कैन जस्ट रीड एंड गो थ्रू इट। एंड दिस इज द बेस्ट मंथ एक्चुअली टू प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस फॉर श्री कृष्ण, राइट। सो नाउ आई विल टेक यू टू 15 चैप्टर। 15 अध्याय लेके चलते हैं, इसको आप रोज रिसाइड भी कर सकते हो इफ यू वांट। इसको एक हैबिट बना लो कि मॉर्निंग में यू कैन जस्ट टेक अ हैबिट ऑफ रिसाइटिंग दिस वर्ड्स। तो देखो, द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय का नाम ही है, राइट। तो अंग्रेजी में योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन बोलते हैं, हिंदी में पुरुषोत्तम योग बोलते हैं। तो मैं आपको बेसिक वो बताऊंगा इस चैप्टर में है क्या है, राइट। मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। आई विल नॉट टेक वन बाई वर्ड्स क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, पर मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। सो द फर्स्ट 4 वर्सेस, जो पहले 4 वर्सेस है ना इस चैप्टर के, ये क्या बताते हैं अपने को। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। दैट यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी, राइट। यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। तो जो पूरी की पूरी यूनिवर्स भगवान ने बनाई है ना, एक प्रकार से यूनिवर्सिटी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तो सीखने का तरीका कैसे होता है कि आप सीखते हो एक्सपीरियंसेस से, दुनिया के अंदर आप अनुभव करते हो कुछ चीज़ों को, फिर अनुभव से कुछ चीज़ सीखते हो। अनदर वे ऑफ लर्निंग इज कि भगवान ने खुद इस यूनिवर्स को समझाया है, भगवान ने खुद समझाया है यूनिवर्स है कैसा। तो अगर आप वेदों को पढ़ोगे, उपनिषद को पढ़ोगे, और अगर इतना नहीं तो गीता को ही अगर खाली पढ़ोगे ना, तो आप एसेंस में समझ पाओगे व्हाट इज दिस यूनिवर्स ऑल अबाउट। एसेंस, मैं एसेंस कह रहा हूँ, इसकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लंबी चौड़ी डिटेल्स, पर मैं आपको एसेंस बता रहा हूँ कि एसेंस में आप समझ पाओगे कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स ऑल अबाउट। The universe is a university, the first 4 verses. Now going forth from fifth verse, 5, 6, 7, ये 3 वर्सेस अगर आप पढ़ोगे तो these 3 verses tells us there is something beyond this universe. इस दुनिया से परे कुछ है। इसी में 6th वर्स में भगवान इसलिए बात बोलते हैं ना, न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यत्तत्त्वानि निवर्तन्ते तद्धर्मा परमं मम। फिफ्थ वर्स, फिफ्थ वर्स में क्वालिफिकेशन देते हैं। अगर आपको भगवान के धाम जाना है ना, so what qualification do you need to have? That is in the fifth verse. निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य निवृत्त काम संदेह विमुक्त सुख सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा परम बुद्धयं ततो। दिस इज निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम संदेह विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम। अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको ये सारे गुण पैदा करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया है, गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाता है। कहाँ जाता है? पदम, परम पद को प्राप्त करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करता है। किन गुणों से प्राप्त करेगा? निर्माण मोह, निर्माण, निर्माण मतलब थोड़ा सा भी फॉल्स प्रेस्टीज नहीं होना चाहिए अपने को। अगर अपने को फॉल्स प्रेस्टीज है ना किसी भी चीज को लेके, भगवत धाम का गेट जो है ना बहुत छोटा सा है। भगवत धाम के गेट में जब जाओगे ना तो बहुत छोटा सा गेट है वो, जहाँ पे खाली आत्मा एंटर कर सकती है। अगर उस आत्मा के ऊपर थोड़ी सी भी कवरिंग होगी ना, फॉल्सिंग होगी, दरवाजे से टकरा के गिर जाएगी वो बाहर, वो अंदर नहीं जा पाएगी।
कई बार देखते हो ना, गुफा गुफा में हम जाना होता है, छोटी सी गुफा होती है, तो कितना झुकना पड़ता है हमें, झुक करके, लेट करके, कैसे जाना पड़ता है, फिर आप अंदर जा पाओगे। सेम चीज भगवान के धाम के साथ है। जब आपको भगवान के धाम जाना है, बहुत इस मान की भावना से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप हमेशा रिस्पेक्ट ढूंढोगे ना, तो आप याद रखना, भगवान के धाम जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां पे ये रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती है। वहां पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज होती है, वो रिलेशन होता है भगवान का एक जीवात्मा के साथ। देयर इज नथिंग लाइक रिस्पेक्ट। और ना कोई रिस्पेक्ट सीख करता है, और ना कोई रिस्पेक्ट किसी को देता है। द होल एटमोसफियर इज टोटली बेस्ड ऑन प्योर रिलेशन विद कृष्णा। भगवान के साथ एक शुद्ध संबंध पे आधारित है। मोह त्यागना, दैट्स द सेकंड वर्ड यू सी। जित संग दोष। जित मतलब यू हैव टू विन ओवर। किसके ऊपर जीतना है? जो प्रकृति के तीन गुणों से हमें दोष प्राप्त है ना, दोष का मतलब होता है कि कंटेमिनेशन, उस पे जीतना। विन हैव टू विन ओवर इट। अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त काम, जीरो डिजायर्स, बिल्कुल इच्छाएं जीरो रखनी। द्वंद्व विमुक्त, इस दुनिया के द्वंद्व, सुख दुख जैसे आगे बताएंगे, इसमें एक समानता बनाए रखना। तो ये सब क्वालिटीज भक्ति करते करते हमारे अंदर आने लगेगी ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका टिकट जो बैक होम बैक टू गॉडेड है, वो फिक्स होता जा रहा है। ना यू कैन फ्लाई बैक, यू कैन फ्लाई बैक, जा सकते हो वापस। यहाँ पे प्रपात कह रहे हैं, द सरेंडरिंग प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड हियर वेरी नाइसली। और उसको पढ़ना, अगर आप पुरुषोत्तम योग समझना चाहते हो, तो इस महीने इस अध्याय को रोज पढ़ना, बैठ जाना चाहिए एक अध्याय गीता का। 5, 6, 7, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द यूनिवर्स। नाउ 8, 9, 10 एंड 11, ये जो चार वर्सेस हैं, ये क्या बताते हैं? द कॉज ऑफ बॉन्डेज इन दिस यूनिवर्स। हम क्यों बंधे हैं इस दुनिया में, हम क्यों बंधे हैं, व्हाट इज द कॉज। इस कॉज के ऊपर भगवान बहुत सुंदर डिस्क्राइब करते हैं। ही एक्सप्लेन्स कि हमारे बनने का कारण है आइडेंटिफिकेशन विद द मटेरियल नेचर। जब तक हम अपने आप को इस दुनिया से संबंधित मानेंगे, तब तक इस दुनिया से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वी हैव टू आइडेंटिफाई ourselves as a spirit, soul, part and parcel of Krishna। ये पूरा साइंस बताया हुआ है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा अभी, just because just trying to give you a glimpse of it, see what it is। 8, 9, 10, 11, इसके अंदर कैसे एक जीवात्मा इस संसार के बंधनों में फंस जाती है, उसके फंसने का कारण क्या है, वो बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। नाउ 12, 13, 14, 15, again these four verses explain that how Krishna supports each one of us, he maintains each one of us, he empowers each one of us। भगवान हम सबको एम्पावरमेंट देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इन सब के बाद ही इस दुनिया में हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हम बोलते हैं। जैसे 15.12 में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त चतुर्विधा। Like, digest the four types of food। 5.12, no not 12, it's 13, 14, sorry, so बहुत समय पहले पढ़ा था। दैट इज देयर इज, हाँ वैष्णव भूत्वा प्राणे नाम देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त, हाँ पचामी अन्नम चतुर्विधम। अब सोचो कितना भी अच्छा खाना खाओ आप, अगर भगवान अग्नि के रूप में निवास नहीं करेंगे हमारे पेट में, तो हमारे खाने को डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक लिखा है ना, एंड द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड आई जॉइन विद द एयर ऑफ लाइफ आउटगोइंग एंड कमिंग टू डाइजेस्ट द फोर काइंड्स ऑफ फूड स्टफ। मतलब देखो, भगवान कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते थे, लेकिन भगवान ने एग्जाम्पल क्यों उठाया? टू मेक द मैटर वेरी सिंपल फॉर अस, मैटर को बहुत सिंपल बनाने के लिए, एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस क्या, कि आई एम सपोर्टिंग ईच वन ऑफ यू। हम भगवान हम सबको इतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा खाना तक डाइजेस्ट हो जाए। इससे ज्यादा क्या चाहोगे बताओ? इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम भगवान दे रहे हैं सबको, इससे बढ़कर क्या सपोर्ट देंगे बताओ?
क्योंकि हमारे खुद की शक्ति से भी वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड। फिर आगे वाले वर्ड्स में बोलेंगे, बड़ा फेमस वर्ड्स है, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेदविदेव चाहम्। है ना, सर्वस्य चाहं, सभी के हृदय में निवास करता हूँ। कैसे? परमात्मा रूप में। और उसी से स्मृति, ज्ञान और सम्मोहन, ये सब पैदा होता है। स्मृति ज्ञानम सम्मोहन वेदश्च सर्वर अहमेव वेद्यो। तो सारे के सारे वेदों का सार है भगवान वेदांत। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। भगवान ने वेदांत की रचना क्यों की? ताकि उस वेदांत से आप भगवान को जान सकें। सच ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है वो। डिटेल में इसको मैं लूंगा तो लेट यू नो। बहुत ही सुंदर है सारे वर्सेस। इसके बाद 16, 17, 18, ये तीन वर्सेस के अंदर भगवान अपनी पोजीशन बता रहे हैं। पोजीशन की मैं एक्चुअली में कौन हूँ। और बता रहे हैं जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं ना स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, टू मच इकोइंग, मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट, जस्ट स्विच ऑफ माय जूम लिंक। ओके, नाउ इट्स बेटर। मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, आई डोंट नीड स्क्रीन फॉर इट। सो नाउ आई कैन स्पीक फुल्ली। द पॉइंट इज 16, 17, 18 इज ऑल अबाउट द वेदांत। ये तीन वर्सेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें वेदांत का सार बताते हैं। वेदांत का सार कैसे है कि वेदांत के अंदर ना हमेशा ये चर्चा चलती आई है कि परम सत्य कौन है। इसलिए वेदांत सूत्र का पहला अफोरिज्म जो कि वेद व्यास ने लिखा है, दैट इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। समझ रहे हो? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ट्राई टू फाइंड आउट दैट एब्सोल्यूट। अब जब ये एब्सोल्यूट को ढूंढने निकलते हैं ना, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ रखा है एब्सोल्यूट को। कैसे? शंकराचार्य ने उसी एब्सोल्यूट को डिफाइन कर दिया कि द जीवा इज ऑल्सो एब्सोल्यूट and the supreme lord is also absolute. Both are absolute and both are same. One is just under the influence of maya, another one is just outside the influence of maya. लेकिन भगवान ने इतने सटीक तरीके से इस बात का खंडन इन तीन वर्सेस में किया है, which actually establishes the समरी ऑफ द वेदांता। इसीलिए ये दो तीन श्लोक मैंने आपको बताया ना 15 चैप्टर के, 16, 17, 18, इसको वेदांत का सार बोलते हैं। वेदांत का सार क्या बोला गया 16, 17, 18 में, तो ध्यान सुनिएगा। क्षर अक्षर दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। ये जीव कैसे होते हैं? जो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, वो जीवों को क्षर बोला गया है। क्षर, नीचे गिर गए, वो इस दुनिया में आ गए, कंडीशन सोल जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं। और जो जीव आध्यात्मिक जगत में हैं, आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, उनको अक्षर बोला जाता है। अक्षर, जैसे अक्षरधाम है ना दिल्ली में, आप जानते हो, तो नाम अक्षरधाम क्यों दिया गया है? क्योंकि उनका मानना है कि वो एक अक्षरधाम है, उसका क्षय नहीं कभी हो सकता। इट इज ऑलवेज एटर्नल, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उनके अक्षर शब्द यूज ही उसके लिए करते हैं जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो नीचे नहीं आ सकता। तो दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। ये भगवान पहले 16वें अध्याय में बोलते हैं। फिर भगवान कहते हैं 17वें में, पुरुषस्व अन्य, इसके अलावा भी एक और पुरुष है जो निवास करता है इन दोनों के अलावा। और उस पुरुष को उन्होंने बताया उत्तम पुरुष। वो उत्तम पुरुष क्यों बोला? क्योंकि वो पुरुष इन दोनों जीवों से विभिन्न है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां भगवान ने बात बोल दी ना कि ये दोनों जीवों से विभिन्न है, ये इसका मतलब क्या होता है कि भगवान और जीव एक नहीं है, लेकिन ये एक भी हैं। एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना होगा प्रभात बुक्स के अंदर, देयर इज अ क्वालिटी इज वन बट देयर इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस। जैसे सागर है, सागर की एक बूंद होती है। गोल्ड है, गोल्ड माइन, गोल्ड माइन एक छोटा सा पीस है गोल्ड का, और एक गोल्ड माइन है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी का फर्क है, बट क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज सेम। तो जीवों में और भगवान में क्या भेद है, इन तीन वर्सेस में बोला गया है, 16, 17, 18। अब लास्ट के 2 वर्सेस, है ना, देख लेते हैं, देख पाए। कोई मैसेज आया है इसमें। ओके, जगन्नाथ हमको तो होम भेजा है, HOME, एक्रोनिम। हाँ, ये तो अभी नए लोगों के लिए।
होम इज गुड फॉर द न्यू वन, बट हम लोग पुराने लोग हैं अभी, तो टू गो इनटू डिटेल। तो ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा है नए लोगों के लिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड डेप्थ, इसकी क्या डेप्थ एक्चुअली। देन 1920 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। 1920 में क्या है, आप लोग अगर वेदांत सूत्र पढ़ोगे उसके लास्ट का जो एकदम वर्स है ना, वो दो बार कहता है एक ही चीज को बार बार, अनावृति शब्दात, अनावृति शब्दात। ये दो बार बोला है। क्यों बोला गया है कि अगर आपको इस संसार से बाहर निकलना है तो यू हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द डिवाइन साउंड वाइब्रेशंस। सरेंडरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमने बहुत बार सुनेंगे, सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो। इतना डर जाते हैं इस वर्ड से, सरेंडर करो। पता नहीं क्या करवाने वाले सरेंडर करा करके। और जब हम लोग शुरू शुरू भक्ति में आते हैं, सबसे पहले इसके वर्ड सुनते हैं ना, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और किसी कॉलेज स्टूडेंट को बताओ कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, डर जाता है वो, भाई मेरे कॉलेज छुड़वाने वाले हैं क्या, ब्रह्मचारी बना देंगे मेरे को क्या, क्या करेंगे मेरे साथ। सरेंडर मतलब पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। बहुत एक इनसिक्योरिटी आने लगती है मन के अंदर। लेकिन सरेंडर है क्या, ये इस दो वर्सेस में बताया 1920। उसमें भी भगवान बताते हैं सरेंडरिंग मीन सरेंडरिंग टू द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के वर्ड्स होते हैं ना, इनको अपने आप को सरेंडर करना होता है। सरेंडर करने का मतलब सुनिएगा ध्यान से। सरेंडर करने का मतलब होता है, भगवान ने अर्जुन को 4th चैप्टर के अंदर दो यज्ञों के विषय में बताया है। दो यज्ञ, एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल यज्ञ होता है ना, आप यज्ञ कुंड में देखोगे, उसमें घी डालते हैं, सारे हवन की सामग्रियां डालते हैं, तो ऐसे यज्ञ कहते हैं इसको, एक नॉर्मल यज्ञ जो आपने देखा है, राइट। दूसरा क्या होता है, आप कभी डोनेशन देते हो मंदिर में, या कोई अनाज ला करके मंदिर में दान कर देते हो। मंदिर में लेने का मतलब है फॉर द कॉज ऑफ लॉर्ड विष्णु। किसी प्रकार से कुछ ऑब्जेक्ट को आप दान में देते हो ना, किसी ऑब्जेक्ट का यज्ञ करते हो, उसको द्रव्य यज्ञ बोला गया है। लेकिन भगवान ने 4.34 के अंदर ये बात बोली हुई है, 4.33, सॉरी जस्ट वन वर्स बिफोर इट, 33 के अंदर बोलते हैं कि इन द्रव्य यज्ञ से ज्यादा अच्छा माना गया है ज्ञान यज्ञ। अब ये ज्ञान यज्ञ क्या चीज होती है, कि अर्जुन को भगवान इंकरेज कर रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ के लिए। ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि हमारे जो कंसेप्शंस हैं ना इस दुनिया को लेकर के, प्लीज माइंड मेरे वर्ड्स को तो ध्यान से सुनिएगा तब आप समझ पाएंगे। जो ये दुनिया को लेके हमने कंसेप्शंस पैदा कर रखे हैं मन में ना, वट एवर कंसेप्शंस वी हैव फॉर दिस वर्ल्ड, भले वो बहुत सारे कारणों से बने होंगे। कुछ वेदों से सुन के बने होंगे, कोई बड़ों से सुन के बने होंगे, कोई अपनी भौतिक एजुकेशन के द्वारा बने होंगे, कोई कुछ ना कुछ तरीके से अलग अलग कंसेप्शंस होते हैं मन में। और पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण भी बहुत सारे कंसेप्शन होते हैं मन में। तो इन्हीं सब कंसेप्शंस की आहुति डाल देनी चाहिए। आहुति डालने का मतलब है उसको यज्ञ में डाल दीजिए, यज्ञ की आहुति दे दीजिए उसको। कौन सी यज्ञ की आहुति में, जो भगवान बता रहे हैं वो बात को। तो भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है, भगवान के जो कंक्लूजन्स हैं, भगवान जो बात बोल रहे हैं ना, दैट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अवर लाइफ। अगर हम उन प्रिंसिपल्स के आधार पे जी रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सरेंडर। अन्यथा सरेंडर, कई बार लोग सोचते हैं सब छोड़ छाड़ देना ही सरेंडर होता है। नो, आप सब छोड़ भी दोगे तो करोगे क्या एंड ऑफ द डे, बिकॉज बीइंग एन सोल, बीइंग एन एक्टिव पार्ट, यू हैव टू एक्ट। आपको एक्ट करना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के कैसे काम करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल एट फर्स्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि we have to understand the surrender means anavriti shabdat, anavriti shabdat. We have to actually work a lot upon our hearing। हमें अपने hearing पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। The more we refine our hearing, जितना अपने hearing को रिफाइन करते जाएंगे, और सुनेंगे, और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और सुनेंगे, और क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितना बेटर रिफॉर्म कर पाएंगे ना, आप देखिएगा यू विल गो मोर एंड मोर क्लोजर टू कृष्णा, भगवान के और करीब जा पाएंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर का मतलब आप छोड़ भी दीजिए सब कुछ, लेकिन छोड़ने के बाद भी आपको भगवान नहीं प्राप्त होंगे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण नहीं मिले। ये कोई गारंटी नहीं है कि छोड़ने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। आपको कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। दैट पॉजिटिव इज हियर, हियर, हियर। आपको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। अब आप जब परपट पढ़ोगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि प्रभुपाद इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं वहां पे,
तो बात कह रहे हैं वी शुड बी एबल टू हियर एंड अंडरस्टैंड बाय द अथॉरिटीज द वैदिक मैसेज। अगर आप ध्यान से सुनोगे समझ पाओगे तो उसका बेनिफिट है। प्रभार आगे लिख रहे हैं वन शुड नॉट सिंपली हियर लाइक अ हॉग। तो ये जब पढ़ोगे आप कहोगे व्हाट इज दिस हॉग हियरिंग एक्चुअली, हाउ डज द हॉग हियर्स। दिस इज अनदर पॉइंट वेयर यू कैन इन्वेस्टिगेट हाउ डज ही हियर्स इट। द पॉइंट इज अगर आप सुन रहे हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको तपस्या करनी चाहिए फिर। ये बलदेव विद्याभूषण वो बताते हैं कि तपस्या का मतलब ही यही है कि हमें कोई चीज़ ना समझ में आए कुछ दिन खाना पीना बंद कर लो, चैंटिंग करो बैठ के, रीडिंग करो, तो अपना दिमाग स्क्रैच करो, समझने की कोशिश करो क्या बोला जा रहा है। इसीलिए वैदिक लैंग्वेज वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझने का एक ही तरीका है, तद विधि पढ़ी पाते न परिप्रश्ने न सेवया। कि आप क्या करो, पढ़ी पाते हैं ना, हैव अ वेरी सबमिसिव मोड। तो सबमिसिव मोड में गो एंड आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर करो। और वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन आंसर देन सर्व कृष्णा। तो आप भगवान की सेवा करो, देन यू डू इट। वो ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट दिस नॉलेज इज ऑल अबाउट। देन अवर होल हियरिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। इवन भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल तक भी आपको जाना होगा ना। माइंड माई वर्ड्स, द हियरिंग इज द की, हियरिंग इज द की, हियरिंग इज द की। आपको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। आपको सुनना पढ़ना एक ही बात मैं कह रहा हूँ। अगर मैं पढ़ने की बात कह रहा हूँ तो आप ये मान के चलो पढ़ना सुनना एक ही बात है। बिकॉज अल्टीमेटली पढ़ना भी क्या है, किसी स्पीकर ने कुछ बोला हुआ है अपने बुक के फॉर्म में तो हमें उसको अच्छे से सुनना है। और हियरिंग अपने में बहुत बड़ा साइंस है। अगर आपकी हियरिंग खाली अच्छी हो जाए ना, आई कैन लिटरली से आप ऐसे आराम से एडवांस करोगे भक्ति में, योर सेल्फ विल रियलाइज इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब डिवोटीज इस एलिमेंट को नहीं समझ पाते तो दे स्ट्रगल अलॉट। है ना, स्ट्रगल कहाँ करते हैं लिटरली, दे स्लीप इन चैंटिंग, दे स्लीप इन हियरिंग। इन दो चीजों में आप कॉन्स्टेंटली सोते हो देखोगे। और सेवा में कभी नहीं सोएगा। वो कभी भी क्लास दे रहा होगा या किसी को पढ़ा रहा होगा तब कभी नहीं सोएगा। वो कभी महाप्रसाद खा रहा होगा तब कभी नहीं सोएगा। इन सारे इवेंट्स में कभी भी सोते हुए आपको नहीं मिलेगा व्यक्ति। कब सोते हुए मिलेगा, when he is chanting और hearing, जो सुन रहे हैं उसको, and when he is actually hearing भागवतम classes। भागवतम में भी होता भी यही था, we have seen after so many years also। कुछ डिवोटीज ऐसे स्ट्रगल करते हैं जब हियरिंग में कि जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पता नहीं क्या होता है, ऐसा मैजिक है। दिस इज द मैजिक ऑफ द वर्ड ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड वासुदेव। कि भगवान वासुदेव के शब्दों में इतनी शक्ति है कि लेते ही सो जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे लोगों की निद्रा दूर हो गई just because they take shelter of the holy name of Krishna. So that is not the goal. The goal is what? We should attentively hear. Now, what is attentive hearing? मैं 2 मिनट और लूंगा, then I'll finish it off. पहले तो हमें कंटेंट क्लियर होना चाहिए, व्यक्ति ने कंटेंट क्या बोला है सामने वाले ने। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेक्चर सुनोगे ना तो वी शुड मेक नोट्स। नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है, क्योंकि पहली बार में हम श्रुतिधर तो है नहीं कि एक बार में मैं समझ में आ जाएगा कि एक बार में क्या बोला सामने वाले ने। सो मेक सम नोट्स, सम मेक सम माइंड मैप्स कि व्यक्ति ने शुरुआत कहाँ से की थी और उसने एंड कहाँ से किया था। वेयर ही स्टार्टेड द होल लैंग्वेज एवरीथिंग एंड वेयर ही एंडेड द होल क्लास। तो जब आप वो चीज़ बनाओगे ना तो you'll गेट द ओवरव्यू। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ट्राई टू गो इनटू डिटेल्स। वो डिटेल्स में देखो कि उन्होंने क्या क्या डिटेल्स के अंदर बताया, किस किस पॉइंट को एम्फसाइज किया। और ये हमारा एक चर्निंग का, हमारे निधि ध्यासन का, हमारे मेडिटेशन का पॉइंट होना चाहिए जिसको हम दिन भर मेडिटेट कर सकें, चर्न कर सकें, ध्यान कर सकें। जब ऐसी चक्षु विकसित करेंगे ना, ऐसी दृष्टि विकसित करेंगे, देन वी विल बी इन अ पोजिशन टू सी द वर्ल्ड इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। दुनिया को हम एक सही कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे। देन एक्चुअली द भक्ति स्टार्ट्स। फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे इस दुनिया में कैसे रिलेट करना चाहिए, किस चीज़ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मेरा पर्टिकुलरली इस दुनिया के रिलेशन क्या है। एंड सो मैनी आंसर्स यू विल गेट ऑफ दोज क्यूरीज जिसके हमें आंसर नॉर्मली मिलते नहीं। तो दैट्स द वे द 15 चैप्टर एंड्स। तो पुरुषोत्तम मास में यही करना है अपने को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करिए, भगवान को दीप दिखाइए, कोई अच्छा सा कोई प्रेयर याद करिए, भगवान को ऑफर करिए। दैट्स ऑल। साधकों के लिए बता रहा हूँ मैं। और साधना जो आप साधना करते हो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज कभी आओगे संडे को तो बहुत लोग इस महीने में दान भी करते हैं, लॉट ऑफ डोनेशंस पीपल के।
क्योंकि इसमें इस मंथ में किया हुआ डोनेशन आपका एटर्नल बेनिफिट में आता है, बिकॉज इसका कोई भी फ्रूटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। तो लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मास। तो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर कि आने वाला मास अच्छा हो, ताकि हम सब अच्छे से भक्ति कर सकें। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम अधिक मास की जय, जय गौतम। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ओके, सो विल स्टॉप फॉर टुडे। और फिर हम लोग Prabhuji, I have नेक्स्ट। a question. यस माता जी, गो अहेड। Prabhuji, generally the Gyan yogis, when they try to accumulate all the knowledge, that is only for liberation, right? Not till they don't go till bhakti. Is it हम्म correct? दे गो So टिल लिबरेट। here in the 4.34, when you said Gyan Yagya is better than Dravya Yagya. हम्म So I did not understand actually that point. Okay, I will say it again. This is 4.33. This is one verse before that. So why he is saying that, 33. why Krishna is saying that, try to understand this point. Because he hasn't touched bhakti till now. भगवान ने भक्ति को छुआ नहीं है अभी तक। भक्ति को भगवान 6 चैप्टर के 47 वर्स में थोड़ा सा टच करेंगे। देर ही विल से योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते ये माम समय युक्त तमो मता। तो देर ही यूज द भजते, भजते कम्स फ्रॉम भक्ति बेसिकली। तो वहां पे टच करेंगे। अभी भक्ति को कोई टच नहीं किया कहीं भी भगवान ने। तो भगवान ने 4.33 के अंदर ये स्टैब्लिश किया है, ज्ञान इज सुपीरियर देन कर्म। राइट। इस पे आप सुनना चाहो तो यू कैन हियर द चेतन चरितमृत क्लास, मैंने इसी मंडे को दिया था। वो डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को बताया है, कर्म एंड ज्ञान। तो उस ज्ञान में ज्ञान यज्ञ को सर्वोपरि बताया है कर्म से। लेकिन ज्ञान यज्ञ और सिंपल तब है जब आप ऐसे व्यक्ति के पास जाके उसको हासिल करो जिसके पास ऑलरेडी ज्ञान है। तो 4.34 सेज तद विधि पाते हैं ना परिप्रश्न सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनम। गोइंग टू द तत्वदर्शी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पॉइंट इज कि ज्ञान इज सुपीरियर देन कर्म, बट ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन भक्ति। So if you have to understand bhakti properly now, so you have to go from 7th chapter of the Bhagavad Gita. There gradually Krishna builds that concept that how bhakti is greater than jnana. So it's a very elaborate discussion, very elaborate, बहुत लंबा discussion है ये। But theoretically हमको ये जानना चाहिए कि bhakti is greater than ज्ञान। So in one of your lectures, I heard that even devotees, they try to accumulate, like they try to finish all the books and all the scriptures, but then it doesn't reflect in the behavior. Like philosophy is very strong, but it is not there. So does that also come under Gyan process only, or does it still count under Bhakti? That is not also ज्ञान, that's full ignorance. Okay. Why it's a full ignorance? Because if you are reading, because first of all, let's be clear, what we are reading is a bhakti scriptures. We are not reading any ज्ञान scripture, try to understand. ज्ञान scripture are different. तो ज्ञान स्क्रिप्चर बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर दैट एक्चुअली यू हैव टू लर्न संस्कृत फर्स्ट, यू हैव टू रीड थ्रू द कमेंट्रीज ऑफ द शंकराचार्य एंड मेनी स्टॉलवर्ड्स इन दैट लाइन। हम जो पढ़ रहे हैं भक्ति शास्त्र ही पढ़ते हैं, हम और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बट एक्स्ट्रा भक्ति शास्त्र आप पढ़ रहे हो लेकिन आप सेवा नहीं करते हो, इफ यू डोंट सर्व स्पेशली द वैष्णव, तो जबरदस्ती का हमारा हेडवेट बढ़ जाता है, दैट्स ऑल। वी कैन पोज ऑफ टू द पीपल दैट आई एम टू मच नॉलेजेबल, बट द पॉइंट इज ऑल नॉलेज शुड कंक्लूड इन द सर्विस टू कृष्ण एंड गुरु। अगर वो कंक्लूजन वहां नहीं हो रहा ना जाकर के, तो मतलब कि दैट्स फुल Samaya तम vahi kevalam. फुल फुल तमोगुण। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो आप, फुल तमोगुण, पूरा इग्नोरेंस है। और विशेष प्रकार का इग्नोरेंस होता है वो। और आजकल बहुत ज्यादा है ये भक्तों के अंदर। पीपल रीड अ लॉट, कोट अ लॉट, टॉक अ लॉट, बट व्हेन दे कम टू द ग्राउंड दे डू नथिंग। सो इट्स बेटर आप चरण चरितमृत करो, वहां पे कोई बहुत ज्ञान की बातें नहीं है। और भक्त बैठे हैं एक दूसरे को प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही एक एक सेंसिटिव डीलिंग्स कर रहे हैं, है ना। लविंग डीलिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है, एटलीस्ट एक सेंसिटिव डीलिंग है दूसरों के साथ। तो आई थिंक
ज्ञान शुड कन्वर्ट समथिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। एटलीस्ट भक्ति ज्ञान शुड कन्वर्ट। अगर आप मोनिज्म या मोनिस्टिक ज्ञान की बात करो जो ज्ञान ही करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ओके, भक्ति का ज्ञान डिफरेंट होता है। ओके, Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यस, एनीवन एल्स? हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु। सार्थक राइट? हाँ, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, हाथ को सार्थक करिए। अच्छा, प्रणय को, हाँ ठीक है। प्रभु जी जैसे भी बात आपने करी थी, ये वाली भी जैसे माता जी ने सवाल पूछा था, ग्राउंड रियलिटी पे तो हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम्म सरेंडर वाली। प्रभु जी मतलब मेरा एक बहुत मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि आर्थिक वाला सवाल है, पर मैंने जैसे बुक में पढ़ा था कि पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, जैसे उसके बाद ही हम भक्ति कर सकेंगे और फिर हम सरेंडर कर सकेंगे। तो क्या मतलब अच्छा इंसान का प्रोसेस हम चैंटिंग हियरिंग से जैसे करते जा रहे हैं वैसे ही करते चले, उसी प्रोसेस से हम अच्छे इंसान भी बन जाएंगे क्या? हाँ, ऑब्वियसली एक्चुअली में ये अच्छा इंसान की डेफिनेशन पहले क्लियर करनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर बाहर की दुनिया की बात करें ना, तो उनके लिए जो अच्छे इंसान की बात होती है, वो बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा इंसान उनके लिए होता है मॉरल टर्म्स के अंदर, टू 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 मच ऑफ मोरालिटी। बट हमारी भक्ति की लाइन में हम मोरालिटी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि टू मच ऑफ मोरालिटी, जिसके कारण कई बार भक्ति सेक्रीफाइस हो जाती है ना, दैट इज नॉट राइट। जैसे कई बार आप हम्म। देखोगे कि यंगस्टर्स में होता है कि पापा मम्मी मना कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। अब देयर वी हैव टू टेल हिम कि बाबा, ये मोरालिटी अच्छी है कि हमें मदर फादर की सुननी चाहिए, नो डाउट, बट दिस इज टू मच, जिससे कि आप अपना लॉस कर रहे हो। है ना, आपको भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। इसी युधिष्ठिर महाराज वॉज टू मॉरल। मैं अश्वत्थामा को नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये नहीं बोलूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान को उनको समझाना पड़ा कि नहीं बाबा, आप जो बोल रहे हो भक्ति है एक्चुअली, आप बोलो जो मैं कह रहा हूँ। तो समटाइम्स आउटसाइड की जो दुनिया की मोरालिटी होती है ना, केवल भक्ति में बाधा पड़ती है। तो इसीलिए हमें एक्चुअली ये चेक कर लेना चाहिए कि वो मोरालिटी है क्या। और सारी मोरालिटी गलत नहीं होती है, ऐसा नहीं। कई बार भक्त एक एक्सट्रीम साइड ले लेते हैं। उनको लगता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं सारे रेड लाइट्स को तोड़ते हुए जाऊंगा, क्योंकि डिवोटी ऑफ कृष्णा इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, so he doesn't needs to follow the state laws, है कि नहीं? तो कई बार लोग आर्टिफिशियल मोरालिटी के नाम पे दे जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग द वेरी बेसिक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स। तो गलत है ये, दैट्स रॉन्ग। तो ये भक्ति करते हुए देखोगे आप ना, अच्छे गुण आपके अंदर खुद ही आ जाएंगे, कोई तो मोर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू। यस, सार्थक go ahead. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Firstly, thanks a lot, Prabhuji, for wonderful class. Prabhuji, एक just confirm सार्थक करना को आई चाहता। एम नॉट एबल टू हियर यू। एक मिनट, ये सुन लगा। हरे Go कृष्ण ahead. Prabhuji, अब आ रही है आवाज Prabhuji? आ रही है, हाँ। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हाँ, Thanks a lot, firstly, for wonderful class. Prabhuji, फर्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब जैसे 4.33 का आई थिंक डिस्कस कर रहे थे कि जिसके अंदर तत्विदित में पाते हैं। तो प्रभुजी उसके अंदर शायद आपने भी बोला था आई थिंक, और एक बार शायद दीनबंधु प्रभु जी ने भी कोट करा था कि ये उसके अंदर जो बात होती है, जो ज्ञान वाली जो बात कर रहे हैं वो हासिल करने वाली, वो बेसिकली भक्ति का ज्ञान है। और ज्ञान बेसिकली भक्ति के अंदर भी जरूरी है, क्योंकि भक्ति के अगर हम वो देखें नॉन, उसमें भी श्रवण सबसे पहला आता है। तो ज्ञान तो जरूरी है, मतलब ज्ञान से ही फिर हम भक्ति तक जा सकते हैं। सही है, मतलब ज्ञान एक तो वो वाला होता है कि जो वो वैसे जो शंकराचार्य वाले जो कर रहे हैं ज्ञान, एक तो वो वाला ज्ञान होता है, और एक होता है कि मतलब ज्ञान को हमें भक्ति के अंदर भी लेना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट द नो थिंग्स, नो 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 ऐसा। नो 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 नो, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। जब भी ज्ञान टर्म यूज हो रहा है ना गीता के अंदर, प्लीज माइंड माय हम्म, वर्ड्स, वो ज्ञान वही ज्ञान है, मोनिस्टिक ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान की बात हो रही है। जब कभी भी बुद्धि योग वर्ड यूज हो रहा है, बुद्धि योग, याद रखना। हम्म, तो बुद्धि योग का मतलब है कि भगवान आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, दैट इज भक्ति ओनली। तो बुद्धि योग एंड भक्ति योग इज वन एंड द सेम। ठीक है ना? हम्म, रिवील्ड नॉलेज रिवेलेशन होता है, दैट इज बाय कृष्णा हिमसेल्फ सिटिंग इन द हार्ट। बट ज्ञान इज नॉट रेवलेशन। ज्ञान को आप
एक प्रोसेस के द्वारा एक्वायर करते हो। इनका भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ये पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मनन करते हैं, निधिध्यासनम करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन फ्रॉम वेरियस एंगल्स, दे ट्राई टू स्टडी एनालाइज एंड देन फॉर्मली कंक्लूड टू अ कंक्लूजन दैट एब्सोल्यूट इज फॉर्मलेस, एब्सोल्यूट इज एट्रीब्यूटलेस, इज क्वालिटीलेस। एट्रीब्यूटलेस या क्वालिटीलेस एक ही बात हुई। तो द पॉइंट इज व्हाट कि ये ज्ञान थोड़ा डिफरेंट है, ये ज्ञान डिफरेंट है। अब जो भगवान 4.33 जो हमने कोट किया उसमें यही कह रहे हैं कि बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, बट ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से बढ़कर है, क्योंकि आप अपने कंसेप्शंस को सेक्रीफाइस करते हो। अपने कंसेप्शंस को सेक्रीफाइस करना ज्यादा सुपीरियर माना गया है। ओके। गॉट इट गुरु। मतलब बट स्टिल अगर हम भक्ति के अंदर भी देखें, मतलब वैसे वाला तो ज्ञान हमें लेना ही पड़ेगा ना, टू दैट कि हम भक्ति भक्ति प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि श्रवण की बात वो करते हैं। भक्ति का ज्ञान है, वो डिफरेंट है। हाँ। तो भक्ति के ज्ञान में बड़ा सिंपल साइंस होता है कि आप आचार्यों के और भगवान के दी हुई बातों को पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन फिर आपकी भक्ति कितनी है हृदय के अंदर, उसके हिसाब से भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं। नॉलेज को प्रकाशित करने का मतलब है वही सेम बात आपको समझ में आने लगेगी। आप आज भी गीता पढ़ोगे, हो सकता है बहुत बातें नहीं समझ में आएंगी। आज से 10 साल विजडम। बाद गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे आपकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है। तुम 10 सालों में हुआ क्या ऐसा? 10 सालों में आपका भक्ति का एक एटीट्यूड बन गया, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हो गया, आपको बात समझा दी है। सिंपल ना? रियलाइजेशन विजडम पा रहे हैं। हाँ, रिलेशन भी कह सकते हैं, मैसेज आ जाएगा। गॉट इट प्रो जी। और प्रो जी, जैसे हम पुरुषोत्तम मास की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर बात कर रहे थे कि इसके अंदर फ्रूटिव नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर कोई भी जो भी चीज करते हैं वो फ्रूट वो उसके फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। तो वो क्या मटेरियलिस्टिकली भी होता है कि अगर मतलब अगर कोई हम्म। मतलब जैसे कर्म कर रहा है, जो भी लेट से कोई बिजनेस के अंदर कर रहा है, कोई जॉब के अंदर कर रहा है, तो उसके भी उसको मतलब कर्म नहीं मिलेंगे, या ना मतलब ना ये ना ना ना, spiritual- मैं ऐसा वही। हाँ, मैं वही ऐसा वही थोड़ी है। बेसिकली। ऐसा थोड़ी है कि पूरे महीने में कर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे ऐसा। नो, डजंट मीन दैट। भाई दुनिया स्पिरिचुअल तो टर्म्स में दुनिया चलती रहेगी। इसमें होगा क्या, इसमें कोई भी ऐसे कर्म जिससे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, मान लो दान देते हो, भौतिक कारण से कोई तपस्या करते हो, वर्णाश्रम के कोई चीज फॉलो करते हो, किसी उद्देश्य से करते हो, तो वो चीज नहीं फुलफिल होगी। जैसे होता है हम्म। ना कि हम आज सोमवार का व्रत रखे हैं ताकि ये प्राप्ति हो जाए, मंगलवार का व्रत रखे हैं ताकि ये प्राप्ति हो जाए, तो इस महीने में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो। सो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट। बट ऐसा नहीं हम्म। कर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब कोई कहे कि इस महीने में इतना पाप करो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट्स गोइंग टू बी देयर, द रिएक्शंस आर गोइंग टू बी देयर। तो बट इसमें देवता नहीं देते हैं। इसका साइंस और भी डीप में बता देता हूँ। इसमें देवताओं के ऊपर सब, क्योंकि कोई इसमें वैसा ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं आ रही ना, तो देवताओं के लिए आप कुछ भी करोगे, देवताओं को कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। देवता कमजोर पड़ जाते हैं इसमें। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, जब भगवान की शेल्टर ले लेते हो ना, तो भगवान देवताओं को नरिश करते हैं। कृष्णा नरिशेस। तो कृष्णा की शेल्टर बेस्ट है, विष्णु शेल्टर इज बेस्ट इन ऑल केसेस, राइट? गॉट इट। ओके, थैंक यू। डन। ठीक है, ओके, सो विल मीट अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। और तब तक आप सब भक्ति करिए, पुरुषोत्तम मास में भाव लीजिए, और डू इट नाइसली, वॉट एवर यू कैन डू। और बेस्ट है अगर आप कुछ कर रहे हो, इफ यू वांट टू शेयर ऑल्सो यू कैन शेयर, तो दूसरों को एनकरेज करेगा कि हम भी कुछ करते हैं। तो एक दूसरे के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस को भी शेयर करना चाहिए। तो somebody is, let's suppose, taking a vow of 20 rounds. I am going to read 1 hour Bhagavad Gita, 1 hour Bhagavatam. I am going to rise early in the morning. आप प्लीज शेयर जरूर करना। इट विल रियली एनकरेज एवरीवन कि हमें भी करना चाहिए। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को खूब एनकरेज करना चाहिए ताकि डिवोटीज बढ़ चढ़ के वो करें। ठीक है? और मेरी तरफ से क्या पूछोगे, एक वाव क्या लेना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा थोड़ा जल्दी उठिए सुबह और चैंटिंग करिए सुबह उठ के भक्तों के साथ। हमारा एक ग्रुप है जो मॉर्निंग में जब में आते हैं। शिमोली माता जी बहुत अच्छा लीड लेती हैं उसमें। डेली शी पुट्स अप द लिंक एंड शी इज वेरी कंसर्न अबाउट डिवोटीज मॉर्निंग प्रोग्राम्स। तो प्लीज माई रिक्वेस्ट इज कि आप सब आइए। डिवोटीज आर वर्किंग हार्ड। आपको उठाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। शी इवन आस्क्ड मी कि तो अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसा कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि डिवोटीज को सुबह उठाया जा सके। तो मैंने तो उसको बहुत सपोर्ट तो नहीं किया, मैंने बोला ट्राई करके देख लो, बट डिवोटीज माइंड ना करेंगे, हम सुबह की नींद भी खराब कर रहे हैं हमारी। तो इन एनी केस इट्स अ वेरी गुड मूव। और माय रिक्वेस्ट इज कि आप सब आइए मॉर्निंग में जब करें। दैट्स द बेस्ट ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मास। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर प्रभात की जय।
Thank you, Guruji. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna. हरे